Start. Very good morning, boys and girls. 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 अभी नहीं, next session में अभी नहीं. Very good morning, boys and girls. I welcome you all to the session of 12th standard secretarial practice. 12वीं secretarial practice में आप सभी का स्वागत है. रेवनवार. ध्यान दें. Yesterday we have started with issue of shares to its employees. Issue of shares to employees में 4 मेथड है. ESOS, ESPS, SARS and certificate. ESOS के अंदर ऑप्शन दिया गया है. The option is to be exercised by the members. Whether they wish to or whether they don't wish to is up to the members to, it's up to the employees to decide whether they want to exercise the power or whether they don't want to exercise the power. But in case of ESPS there is no power. Salary is deducted. The amount of shares to be paid on shares is directly deducted from the salary of the persons. इसके बाद कल हमने देखा था SARS. SARS is more like a bonus, less like a issue of shares. SARS में एम्प्लॉय को एप्रिसिएशन की जो भी वैल्यू है उसे एनकैश करने का या इक्विटी शेयर्स में प्राप्त करने का अधिकार मिलता है. So it is not as you wish, it is at the wish and will of the company to decide whether they want to pay the appreciation value in cash or whether they want to pay the appreciation value in kind, that is in form of shares. Now the final point remaining here is sweat equity shares. नाम sweat बोलते ना, वो खून पसीने की कमाई है मेरी, जैसे मेरे जैसे गरीब की है. खून पसीने की कमाई, यू नो, खून पसीना एक करके कमाई चलता. खून पसीने की कमाई है. क्या क्या है? खून पसीने की कमाई है. जैसे हिंदी में कहा होता है ना, उसी के ऊपर ये कंसेप्ट बेस्ड है. स्वेट इक्विटी शेयर्स. बतौर एम्प्लॉय अपने कंपनी के लिए जो खून पसीना एक किया है कंपनी की तरक्की में, कंपनी के ग्रोथ में, उसके बदले में इन रिटर्न, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन रिटर्न? इन रिटर्न बदले में कंपनी जो है अपने ओर से कुछ शेयर्स इशू करना चाहती है. दिस शेयर्स विल बी इश्यूड फॉर द स्वेट, फॉर द एफर्ट्स एंड फॉर द स्वेट, फॉर द एफर्ट्स and for every other thing you have done for the company. When we start discussing sweat equity shares, first I'll have the reading of the text, then I'll come to the particular point. Sweat equity shares. These shares are issued by the company to its director or employees at discount or for a consideration other than cash. These shares are issued by the company to its directors or employees at discount. Underline the word discount. और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश. इसका मतलब क्या है? जैसे सार्स के अंदर एप्रिसिएशन वैल्यू कैश में पे की जा सकती है, क्या स्वेट इक्विटी के अंदर जो कुछ भी देना है हमें फॉर द स्वेट, फॉर द एफर्ट्स दे हैव टेकन, कैन बी पेड इन कैश? इट कैन नॉट बी पेड इन कैश. इट इज इश्यूड इन द रिकॉग्निशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन विद द कंपनी, contribution to the company which has resulted in the increased profit. Sweat equity क्यों इशू किए जाते हैं? For the valuable contribution, for the sweat, for the efforts, for the hard work they have taken for the growth of the company. Sweat equity shares which has resulted in the increased profit. Sweat equity shares rank pari passu. ज्यादा सू के ऊपर जोर मत लगाओ. रैंक पारी पासो. रैंक पारी पासो मतलब ऑन द इक्वल लेवल, राइट? ऑन द इक्वल लेवल. फॉर मी every if I see the statement, for me every student of mine is pari pasu. When I see the statement, for me every student of mine is pari pasu, it's a fact, universal truth. किसी को समझ में आता है, नहीं समझ में आता वो बात अलग है. बट फॉर मी एज अ टीचर एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन इज पारी पासु. दैट मीन्स जब स्टूडेंट है तो हर कोई स्टूडेंट की जगह पर इक्वल है मेरे लिए. कोई स्टूडेंट फेवरेट नहीं होता, कोई स्टूडेंट कम फेवरेट नहीं होता, हर किसी की जगह वही होती है. बस कुछ स्टूडेंट्स होते, अब जैसे हमारा इसनू का है, इतने सुंदर सुंदर शब्द होने के बाद भी अब कर देते हैं माफ. हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को माफ नहीं किया. माफ करने का जब मौका है हर किसी को माफ किया.
because for me every student is same. So when I say every student of mine is pari passu, इसका मतलब क्या है? What do we mean by this word? That everyone is same. कोई ज़्यादा फेवरेट नहीं है, कोई कम फेवरेट नहीं है, हर किसी की जो कुछ भी पोजीशन है और हर किसी को जो मुझे देना है वो इक्वली दिया जाएगा, किसी को कम नहीं दिया जाएगा, किसी को ज़्यादा नहीं दिया जाएगा. हो काचोकत रेला, बरोबर है. सो स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक पारी पेसो विद द इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है? जो स्वेट इक्विटी शेयर्स बतौर एम्प्लॉय को दिए जाएंगे वो शेयर्स और कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स दोनों एक ही रैंक पे है. दोनों एक भी रैंक पे है मतलब दोनों को सेम तरह के वोटिंग राइट्स रहेंगे. ऐसा नहीं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज को दिए तो उनको वोटिंग अधिकार नहीं दिए. स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज को दिए इसका मतलब उनको वोटिंग अधिकार नहीं दिए, ऐसा नहीं होगा. इट विल नॉट हैपन that sweat equity shares are issued to the employees are not the owners of the company, so they do not have any voting right. ऐसा कभी नहीं होगा. ऐसा होना रहेगा नहीं. Whenever shares are issued under sweat equity, these shares and the already existing equity shares rank pari passu. They means they all are on the same level. That means each and every share of these will carry equal voting right. These shares have a lock-in period of 3 years. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, अंडरलाइन करके रखिए. स्वेट इक्विटी शेयर्स में सबसे अलग क्या है? लॉक इन पीरियड कितना है? इसको 3 साल का लॉक इन पीरियड है. यानी 1 जनवरी 2019 को अगर मुझे स्वेट इक्विटी शेयर्स बतौर एम्प्लॉय इशू किए गए, या जीजा अपने हैं रिलायंस कंपनी में एम्प्लॉय है, तो जीजा जी को 1 जनवरी 2019 को जब शेयर्स इशू किए गए हैं तो 3 साल वहां से आगे 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2022, 3 साल तक, अगले 3 साल तक जीजा ये शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते. ईसॉस और ईएसपीएस के अंदर लॉक इन पीरियड कितना था? 1 ईयर. स्टॉक एप्रिसिएशन रेट में लॉक इन पीरियड का कोई कंसर्न ही नहीं था क्योंकि वहां सिर्फ एप्रिसिएशन वैल्यू हम दे रहे हैं. वहां पे वी आर ओनली गिविंग एप्रिसिएशन वैल्यू. सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ सार्स, बट देयर इज ऑल्सो लॉक इन पीरियड कंसेप्ट इन स्वेट इक्विटी. बट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी द लॉक इन पीरियड इज फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. यानी जीजा को जब 1 जनवरी 2019 को शेयर्स इशू किए गए, वहां से आगे 1 जनवरी 2022 तक 3 साल तक जीजा जो है ये शेयर्स किसी को नहीं बेच पाएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स टू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इश्यू द स्वेट इक्विटी शेयर्स. अगेन कंपनी को अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना है, ईसॉस करना है, सार्स करना है, ईएसपीएस करना है, चारों भी केस में एक चीज कॉमन है. एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा, मेंबर से परमिशन लेनी होगी और स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए वोटिंग लगता है मोर देन 75%. अब यू कैन फाइंड, देखो यहां दिया है पारी पासु मीन्स ऑन इक्वल फुटिंग, फुट ऑन इक्वल, फुट ऑन इक्वल फुटिंग, दैट विल बी ट्रीटेड एज एट पार विद द अदर इक्विटी शेयर्स. फीट, फुट ऑन इक्वल फुटिंग, राइट. कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब एक ही जगह, एक ही जमीन पर, एक समान, राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के कंसेप्ट खत्म होते हैं. फर्स्ट देखो, स्लोली स्टडीली वी आर गोइंग अहेड. अब हमने 10 है ना पूरे, 10 में से 8 तो मेथड कंप्लीट कर लिया. पहला मेथड क्या था? आईपीओ एफपीओ टू जनरल पब्लिक. दूसरा क्या था? एग्जिस्टिंग मेंबर्स, राइट इशू, बोनस इशू टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ESOS, ESPS, SARS, स्वेट इक्विटी. सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व होना जरूरी है. यू नीड टू गेट इन्वॉल्व विद द सब्जेक्ट फॉर गेटिंग द डेप्थ नॉलेज. किसी चीज को बड़ी गहराई से समझना है, इन डेप्थ अगर समझना है तो यू हैव टू गेट इन्वॉल्व विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और चीज. जब तक पूरा इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक चीजें नहीं समझ में आती, तब तक धुंधला धुंधला लागे रहे. तो जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक अपना 100% नहीं दे पाओगे. सो फॉर गिविंग ए 100% यू फर्स्ट हैव टू इन्वॉल्व, गेट इन्वॉल्व विद द सब्जेक्ट, इन डेप्थ इन्वॉल्व हो सब्जेक्ट के साथ. ऐसे आंख बंद करे तो याद आना चाहिए. इश्यू ऑफ शेयर्स मेथड कितने हैं? 10. इश्यू ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक, इश्यू ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉयज, इश्यू ऑफ शेयर्स टू मेंबर्स एंड इश्यू ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. इन्वॉल्व हो सब्जेक्ट के साथ, यू शुड गेट इन्वॉल्व विद द सब्जेक्ट. तो पब्लिक में क्या आता है? आईपीओ एफपीओ. पहली बार जो करते हैं वो आईपीओ, बार बार जो करते, उसके बाद जो बार बार करते रहेंगे वो है एफपीओ. गेट इन्वॉल्व. सेकंड क्या है उसके बाद? शेयर्स टू मेंबर्स, राइट इशू,
बोनस इशू, गेट इन्वॉल्व। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉइज, ESOS, ESPS, SARS एंड सेक्रेटरी। आप में से कितने लोगों को लगता है दैट यू हैव इन्वॉल्व, you have got yourself involved into this particular subject along me? Vishnu? देखो सत्य है, you have to get involved, सच है। अगर आप कंसेप्ट में डेप्थ तक जाना चाहते हो, सेक्रेटरी प्रैक्टिस में अगर 99 मार्क लेना तो you have to get involved। देखो सच है, एकदम लाइट, एकदम परफेक्ट है, you need to get involved at any cost। तो कितने लोगों को लगता है यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द सब्जेक्ट, पूरा ऐसा गोता लगा दिया अंदर तक, डेप्थ तक? जस्ट रेज योर हैंड। आई जस्ट वांट अ ब्रीफ समरी एंड क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द 8 मेथड्स आई हैव टॉट। IPO, FPO, राइट इशू, बोनस इशू, ESOS, ESPS, SARS एंड सर्टिफिकेट। थोड़ा 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 2-2 लाइन बोलना है हर एक के बारे में। कौन बोल सकता है, कौन है इन्वॉल्व? Just raise your hand before you wish to answer. Close the door. इसी लगा हुआ। Yes. Who is involved in the subject along me? अब किताब में देख के मत बोलो, जो किताब में देख के बोलने वाले मेरे को एक भी नहीं चाहिए। If you look into the book, don't just say. इसका मतलब कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, सब झूठी बातें हैं, सब कहने की बातें हैं। चलो, इन्वॉल्व कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव? सो अगली बार सवाल पूछूं उससे पहले इन्वॉल्व रहना, ताकि फिर मैं तुम्हें, अब देखो, यू हैव टू गेट इन्वॉल्व। ये इन्वॉल्व वर्ड का महत्व समझो। 10 मेथड अपने को सीखने हैं, आगे प्रोसीजर सीखना है। प्रोसीजर के अंदर अलॉटमेंट के पहले का प्रोसीजर, अलॉटमेंट के बाद का प्रोसीजर, उसके प्रोविजंस। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में सिर्फ प्रोसीजर और प्रोविजंस है। इसको याद रखने के लिए यू हैव टू गेट इन्वॉल्व्ड विद द सब्जेक्ट, डेप्थ तक जाना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को रोजाना पूछते रहो, इशू ऑफ शेयर्स के मेथड कितने हैं? 10। सबसे पहला किसको है? पब्लिक। IPO, FPO। IPO मतलब जब शेयर्स कंपनी पहली बार इशू करती है, दैट इज IPO। FPO मतलब पहली बार होने के बाद अगली बार जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, वो है FPO। IPO के अंदर प्राइस डिटरमाइन करने के 2 मेथड है, बुक बिल्डिंग मेथड और फिक्स प्राइस मेथड। फिर उसके बाद क्या है? इशू ऑफ शेयर्स टू इट्स मेंबर। पहला है राइट इशू, दूसरा है बोनस इशू। राइट इशू के अंदर एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर्स खरीदने का अधिकार दिया जाता है एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट वैल्यू। फिर उसके बाद कौन सा है? बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स व्हिच आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स, राइट? दिस इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्या था? इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इज अ स्कीम वेयर द ऑप्शन to buy the shares of a company at a price less than the market value is given to the existing employees of the company. It has a lock-in period of 1 year. There is vesting period of 1 year to exercise the right under the ESOS. Right? Next was ESPS. ESPS, Employee Stock Purchase Scheme, is a scheme under which the shares are issued by the company to the employees. For this, the price to be collected on shares is deducted from the salary of the members. There is a vesting period of 1 year. In both ESOS and ESPS, the employees will not get dividend, will not get voting rights until and unless they exercise their rights. Next is SARS. In case of SARS, appreciation value is being paid to the employees, right? The number of shares which are being issued at a particular price, which is to be appreciated or be taken at a future date. On a future date, when the appreciated value is calculated, the difference in the appreciated value may be paid in cash or may be paid in equity by the company. It is also one form of bonus payment which is done to the employees. Next today was SARS. SARS is sweat equity shares, where for the consideration of the sweat or the efforts they have taken in the company may issue shares to the existing employee or the directors of the company. These shares issued under sweat equity rank pari passu with the equity shares. That means they carry the equal voting rights as case of general equity share holders. इसे कहते हैं इन्वॉल्वमेंट। इसे कहते हैं इन्वॉल्वमेंट। समझ में आ रहा है? ऐसे ही याद रहना चाहिए। सो गेट इन्वॉल्व, जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे उतना बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट प्लेसमेंट। व्हाट वी हैव नेक्स्ट पॉइंट? प्राइवेट प्लेसमेंट। अभी तक जितने भी हमने मेथड देखे हैं, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट को अलाउड नहीं है। सिर्फ पब्लिक ऑफर वाला जो पहला था IPO, FPO, वो प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं था।
because private company restricts issue of shares to general public. Yes or no? Definition Companies Act क्या कहता है? A private company is company which restricts transferability of shares, which has members less than 200, which has maximum number of members up to 200, and which prohibits the issue of its securities to general public. So if there is prohibition of issue of shares to general public, can there be a public offer by a private company? No. So if there is no public offer of a private company, then let's try to understand how does exactly a private company issue its shares. Ultimately, a private company having share capital also has to issue shares. So how does it get? It issues the shares. We have to understand. That is to be understood in this particular context of private placement. प्राइवेट प्लेसमेंट में हम ये समझेंगे किस तरह से प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करते हैं. सो गेट इन्वॉल्व्ड इन द कंसेप्ट प्राइवेट प्लेसमेंट. When a company offers its securities to a select group of people not exceeding 200, it is called as private placement. 200 से कम संख्या के लोगों को, सेलेक्टेड लोगों को जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, that is issue of shares with the help of private placement. सेलेक्टेड लोग, हर किसी को, जनरल किसी को भी नहीं. एसपीसी में जितने स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को शेयर्स इश्यू किए जा रहे हैं. Now this is issue of shares to selected group of people, those who are the students of SPC, not exceeding 200. So this is called as private placement. I have selected group which are all my students. The number is less than 200 and I am issuing shares of my company only to these students. Whenever shares are issued to specific people not more than 200, such kind of placement, such kind of issue of shares is called as private placement. Are you getting involved? Get involved then. सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पर होता है शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, जो कुछ भी है जब प्राइवेटली सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को इश्यू किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके. इन अदर वर्ड्स, कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज ओनली टू आइडेंटिफाई पर्सन एंड नॉट टू जनरल पब्लिक. जो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन्हीं लोगों को जो है कंपनी शेयर्स इश्यू करते हैं. अब ये आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसा है और किस हिसाब से किया जाता है. प्राइवेट कंपनी को सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ही शेयर्स इशू करने हैं, राइट. तो आइडेंटिफिकेशन और किसे करना है किसे नहीं करना है ये कैसा समझा जाएगा? हाउ डू वी रियली अंडरस्टैंड? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट और आइडेंटिफाई द पर्संस टू बी इंक्लूडेड इन द सेलेक्ट ग्रुप. कौन तय करता है ग्रुप ऑफ पीपल किन्हें इशू? आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल आइडेंटिफाई the select group of people. They can be mutual funds, institutional investors or etc. कौन आइडेंटिफाई करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफाई. अंडरलाइन करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफाई. हु आइडेंटिफाइज? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफाई. प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर स्पेसिफिक किन लोगों को शेयर्स इश्यू करना है ये आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफाई द पर्सन्स टू बी इंक्लूडेड इन द सेलेक्ट ग्रुप. They can be mutual fund, institutional investors, etc. Company has to issue private placement offer letter along with the application. In case of public issue, what is the document which is being issued by the company for issue of shares? Prospectus. Prospectus is the document which is issued by the company in case of a public offer. But in case of private placement, we have selected group of people. In my case, my selected group of people is my students of SPC. So, do I have to issue a prospectus which is for general public? No, I have selected group of people जिनको मुझे ऑफर करना है. So, what will be issued in place of prospectus? Letter of offer. What is to be issued? Letter of offer. Right issue के अंदर letter of offer कहा जाता है उसे, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट को, उस शब्द को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है. कहानी में जैसे ट्विस्ट आता है ना, तो वैसा थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट किया है. जैसे राइट इशू के अंदर जो ऑफर जो है इन्फॉर्म किया जाता है एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, वे भी दैट इज विद द हेल्प ऑफ लेटर ऑफ ऑफर. यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट में जो सेलेक्टेड लोग हैं जिन्हें लेटर या ऑफर कम्युनिकेट किया जाना है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑफर लेटर. लेटर ऑफ ऑफर लेटर मीन्स वन एंड द सेम. यू आर जस्ट इन्फॉर्मिंग द ऑफर टू द पर्सन्स हु आर गोइंग टू बाय दिस पर्टिकुलर शेयर्स. In case of private placement, what is issued? Offer letter. In case of right issue, what is issued? Letter of offer. Don't confuse letter of offer and offer letter. Are we okay? Get involved. The shares offered can be fully or partly paid up and the consideration should be paid by check
demand draft, etc., but not by cash. The amount collected on issue of shares should not be in cash. In case of a private company, the amount to be collected in shares cannot be in cash. But in case of public company, the amount collected on shares can be in form of cash, not by cash. Right to remuneration is not given to the application under the private placement. Company has to get the approval through a special resolution. Right to, not remuneration. Ishno? Right to renunciation is not given to the applicant under private placement. Renunciation. Right to renunciation is not given under private placement. Understand the point. मैं और मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्पेसिफिकली सेलेक्ट किया है कि एसपीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को हम एप्लीकेशन या ऑफर लेटर भेजेंगे. ऑफर किन लोगों के लिए? जो एसपीसी के स्टूडेंट्स हैं. किन के लिए है? जो एसपीसी के स्टूडेंट्स हैं. अब ऐसे केस में काजू कतरेला बोल रहा मेरे को नहीं लेना है शेयर्स, लाइक आई डोंट वांट टू बाय दिस शेयर्स, लेकिन इनके कोई मित्र है. कौन मित्र भाई तुम्हारे? ये तो एसपीसी में है ना, नॉन एसपीसी वाला कौन मित्र है? कौन? हाँ, ऋषिकेश अजमेला. तो ऋषिकेश अजमेला जो इनका मित्र है, जो एसपीसी का नहीं है, अब ऐसे केस में ही इज इंटरेस्टेड टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी. आनंद ने बोला ठीक है भाई, मुझे तो खरीदने नहीं, तू ही खरीद ले. नाउ इज रिनाउंसिंग और ट्रांसफरिंग दिस राइट or offer letter in name of Rishikesh Ajmera. Renunciation of right received under private placement is not allowed. Renunciation of right under private placement is not allowed. Are you getting my point? Private placement के अंतर्गत जो कुछ भी ऑफर लेटर के अंदर जो भी राइट दिया गया है टू द स्पेसिफिक पर्सन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द स्पेसिफिक पर्सन ओनली. अगर ऑफर लेटर काजू कतरेला के लिए है तो एक्सरसाइज भी काजू कतरेला ही करेगा, ऋषिकेश अजमेला नहीं कर सकता. अजमेला समझे बात? राइट ऑफ रिनंसिएशन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. अब यू कैन फाइंड. समझती बात है? क्यों नहीं? जो स्पेसिफिकली काजू कतरेला के लिए तो भाई इसी ने लेना है, तुम्हें नहीं लेना है तुम दे दो, हम हमारा देख लेंगे और किसी को ढूंढ लेंगे. अब ऋषिकेश अजमेला को देना है कि किसी और को देना है वो हम देखते हैं, वो आप उतनी मेहनत मत लो दूसरा व्यक्ति ढूंढने के लिए. राइट? कंपनी has to get the approval through a special resolution. A company can make private placement in two ways. अब प्राइवेट प्लेसमेंट है ना, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल को शेयर्स इशू करने के दो तरीके हैं, दो मेथड है. वन इज राइट इशू, अनदर इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. जब कभी भी प्राइवेट कंपनी पहली बार बनती है, पहली बार एस्टेब्लिश होने के बाद जब कंपनी प्राइवेटली लोगों को सेलेक्ट करती है और प्राइवेट सेलेक्टेड लोगों को शेयर्स ऑफर करती है विद द हेल्प ऑफ द ऑफर लेटर, दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. What did I say? Repeat. Get involved. Whenever a private company, after its establishment, issues its shares with the help of the offer letter to select group of people for the first time, that is called as preferential allotment. An existing private company which has already issued shares to selected group of people. Are they having members? Yes. जैसे आप समझ लो एसपीसी में मैंने जो निर्णय लिया था उसके हिसाब से मैंने सभी लोगों को ऑफर लेटर के द्वारा कम्युनिकेट किया था, और कम्युनिकेट करने के बाद सभी लोगों ने उस ऑफर लेटर को एक्सरसाइज किया और आप सभी लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं. नाउ इन दिस केस द प्राइवेट कंपनी इज ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस. डज द प्राइवेट कंपनी ऑलरेडी हैव मेंबर्स? जिन्होंने शेयर्स खरीदे तुम सब लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हो. सो व्हेनेवर द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर, सच काइंड ऑफ राइट इज कॉल्ड एज राइट इशू, जैसे आपने पहले देखा था. राइट? Did we see right issue? Yes. Whenever the shares are offered to the existing members, it is called as right issue. जब तुम सेलेक्टेड लोगों को दोबारा से कंपनी के शेयर्स में ऑफर कर रहा हूं, that is called as issue of shares under private placement with the help of right issue. Please pay attention. Further, for the second time or further time, the shares of the private company, if they are issued to the existing member
such kind of issue of shares under private placement is done with the help of right issue method, where the right to buy the shares of the company, where the right to buy the shares of the company is given to the existing members. मैंने कंपनी नए से बनाई है, नए से बनाने के बाद सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल मैंने तय किया कि एसपीसी के आप सभी स्टूडेंट्स होंगे और तुम सभी लोगों को ऑफर लेटर दिया है और तुम सभी लोगों ने मेरे शेयर्स कंपनी के खरीदे हैं पहली बार. For the first time after the establishment of a private company, wherever the shares are offered and bought by the investors or the shareholders, such a issue of shares under private placement is done with the method of preferential allotment. It is done with the help of preferential allotment. समझ में आ रहा है? प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनियों के लिए होता है, उसके अंदर दो मेथड होते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, राइट इशू. जब पहली बार एग्जिस्टेंस में आने के बाद शेयर्स इशू करेंगे दैट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, और एग्जिस्टेंस में आने के बाद एग्जिस्टिंग मेंबर्स को फिर से इशू किए जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज राइट इशू. सिंपल एंड क्लियर. सो यहाँ पे राइट इशू में सिर्फ इतना ही दिया, वी डिस्कस द सेम अंडर द ऑफरिंग ऑफ द शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. इतना ही दिया, पेज नंबर 44. इसके अंदर कुछ बताने करने की जरूरत नहीं है. तो लेटर ऑफ ऑफर किसे दिया जाएगा? एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी. नाउ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जब कभी भी एक प्राइवेट कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है और एग्जिस्टेंस में आने के बाद पहली बार अपने कंपनी के शेयर्स इश्यू करती है, फॉर दैट दे सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल टू whom they are going to offer these shares. Such kind of issue of shares under private placement is called as preferential allotment. मैंने कंपनी नई से बनाई है, एसपीसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड. अब इस क्लासेस में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना है मुझे. तो आई हैव आइडेंटिफाइड ऑल माय स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड विथ मी. मेरे साथ पिछले 4 साल में जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे जिनकी संख्या 200 से कम है, इन सभी लोगों को आइडेंटिफाई किया और ऑफर लेटर इन सभी स्टूडेंट्स को भेज दिया. सो आई हैव आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल टू whom I am going to offer my shares for the first time after coming into incorporation. That is called as preferential allotment in case of private placement. Are you getting my point? When a company issues specified securities that can be converted into equity shares in the future to a select group of persons, a preferential basis is called as preferential allotment. Usually, a company offers preferential allotment to the promoters, existing shareholders, employees, venture capitalists, etc. The shares offered are fully paid and applicants have to pay the consideration in cash. Shares issued under preferential allotment have no voting right. Approval of the shareholders in the form of special resolution is needed to make the preferential allotment. Company usually makes or go for preferential allotment as it is not only less time consuming but also involves less paperwork and formalities. अब यहां पर कोई पूछेगा सर यहां पर तो क्या दिया है, सिक्योरिटीज दैट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट फ्यूचर. तो जब कभी भी सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल को मैंने सेलेक्ट किया है तो आपको इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करूंगा. whatever will be issued will be securities and that securities can be converted into equity shares at a future date, not immediate with the effect. Preferential allotment में प्रेफरेंस मैं पहले किसको दे रहा हूं? मेरे सारे स्टूडेंट्स को. लेकिन सभी स्टूडेंट्स को मैं इक्विटी शेयर होल्डर बनाना नहीं चाहता. कुछ मेरे फेवरेट है, कुछ मेरे फेवरेट नहीं है. तो जो फेवरेट है उनको इक्विटी शेयर होल्डर बनाना चाहूंगा, जो फेवरेट नहीं उनको इक्विटी शेयर होल्डर बनाना नहीं चाहूंगा. तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कन्वर्जन का एक पॉइंट थोड़ा अलग होता है. कन्वर्जन के इस पॉइंट के मुताबिक जब सिक्योरिटीज इश्यू किए जाते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इन केस ऑफ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल ओनली सिक्योरिटीज इश्यूड, इट इज नॉट टर्म्ड एज एन इक्विटी शेयर. तो आप लोगों में से बाद में कंपनी तय करेगा कि जिन लोगों को सिक्योरिटीज इश्यू किए इसमें से कितनों को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ थोड़ा सा इस कहानी में इतना सा ट्विस्ट है, बाकी कुछ इसमें फर्क नहीं है. सो हियर वी कंप्लीट प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. ओके ओके अभी ओके. हाँ हाँ
प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मेथड ही अलग है ना। अब यहाँ पर प्रेफरेंस, एक मिनट डिफरेंस पे आ जाओ। चलो, प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल नॉट एक्सीडिंग 200। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर 200 से ज्यादा लोगों को हम शेयर्स इश्यू नहीं करते। सेलेक्टेड सिक्योरिटीज इक्विटी शेयर सिक्योरिटी दैट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इज ऑफर्ड टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। दोनों में सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल है, दोनों में एसपीसी के स्टूडेंट्स है। सिर्फ फर्क क्या है? पहले वाले में सीधा बोला है कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को इक्विटी शेयर्स इशू करना है, सेकंड वाले में सिक्योरिटीज इशू करना है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। यहां पर भी 200 से कम ही करना होगा, 200 से ज्यादा नहीं कर सकते आप, बोलने की बात नहीं है। द शेयर्स ऑफर्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी फुल्ली पेड और पार्टली पेड। जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ व्यक्तियों को सीधा इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, हमने सीधा तय है हमको आप लोगों को इक्विटी शेयर्स इशू करना है, तो उसके अंदर पार्टली पेड भी रहेगा तो चलेगा। फिर जैसे कॉल करते हैं हम वैसे पैसा मंगाया जाएगा, एप्लीकेशन के वक्त कुछ, फर्स्ट कॉल के वक्त कुछ, सेकंड कॉल के अलॉटमेंट के वक्त कुछ, ऐसा करके हम पैसा जो है कलेक्ट करेंगे। लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, आपको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना नहीं करना वो पता नहीं, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा की पूरा रकम पहली बार में ही लिया जाता है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओनली द एंटायर मनी इज रिसीव्ड। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में पूरा की पूरा पैसा एक साथ ही लेना है और सिर्फ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जो पैसा एक साथ लिया जा रहा है उसको कैश में लेने का अधिकार है। यू हैव राइट टू रिसीव द एंटायर अमाउंट ऑफ द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इन केस ऑफ कैश। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर पूरा पैसा एक साथ नहीं आ रहा, इसलिए वहां पे जानबूझ के कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए उन्होंने कंपनी एक्ट में स्पेसिफिक कोई वजह ऐसे है नहीं, उनको कुछ सूझा होगा तो उन्होंने डाल दिया वहां पे प्रोविजन। हालांकि कैश में रिसीव करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी एक्ट वाले ने, कोई बनाने वाले ने किसी ने लिख दिया तो लिख दिया, नॉट कैश तो नॉट कैश, बाकी उसका कोई लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पे फर्क कितना है? यहाँ पर जो शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं दे आर नॉट फुल्ली पेड। तो जैसे एप्लीकेशन के वक्त, जैसे आप तुम इश्यू ऑफ शेयर्स में सीख रहे हो, वैसे धीरे धीरे पेमेंट आप ले सकते हो इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में ऐसा नहीं, एप्लीकेशन के वक्त ही सारा पैसा जो है इन्वेस्टर से लेना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्स लेटर्स इशूड व्हेन द शेयर्स आर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इज इशूड व्हेन द शेयर्स आर ऑफर्ड, नो डॉक्यूमेंट इज इशूड। ऑफर लेटर जो है प्राइवेट प्लेसमेंट में लगेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर लेटर लगेगा, लेकिन जब हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखता। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नॉर्मली कब किया जाता है समझने की कोशिश करो। दोनों भी प्राइवेट कंपनियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति होते हैं, वो होते रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेवाईक। अब मैंने प्राइवेट कंपनी बनाई है तो मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव को कोई डॉक्यूमेंट या कुछ इंफॉर्मेशन भी देने की जरूरत है क्या? अभी मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैंने कंपनी बनाई है, मैं हूं भक्ति मैम, हम दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई है, प्राइवेट कंपनी बनाई है, क्या मुझे मेरे पिताजी को इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है? क्या मैं उन्हें शेयर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में डायरेक्ट इशू कर सकता हूं? मेरे मम्मी को, मेरे भाई को, उसके मिसेस को, मेरे अंकल को, चाचा को, ताया को, फूफा को, जीजा को, और जीजा कर सकता हूं ना? हाँ, भगवान मामा को कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? क्या इनको कुछ इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है? क्या इनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है? क्या इनको कोई ऑफर लेटर देने की जरूरत है क्या जरूरत? तो नॉर्मली प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ये डायरेक्टर और डायरेक्टर के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, इनको और इनके रिश्तेदारों को किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो रिश्तेदारों से तो पहले पैसे लेने चाहिए, बाहर वाले तो दे देंगे, रिश्तेदार का बहुत मुश्किल होता है, पहले द्या म्हणायचं आहेर जे आहे ते। ठीक है, समझ में आया? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।